My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions on similar solids and frustum. कॉन्सेप्ट समझेंगे सिमिलर सॉलिड्स का और फिर इसके बाद फ्रस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल, चैनल सब्सक्राइब कर लें. साथ में ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हरी क्वेश्चन है. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट, देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन. So first question, a solid circular cone is cut into three parts by two planes parallel to its base. These planes trisect the altitude, यानी कि जो altitude है, height है कोन का, so that is being trisected. ठीक है, that is being trisected in three equal parts. If the volume of the smaller cone is V, find the difference in volumes of the frustums. Okay, so हमारा कोन है, so this is the cone and this is cut into three parts by two planes parallel to its base, and these planes trisect the altitude. So this is our height of the cone, not our height, cone का height. And this height is trisected, let us say radius is capital R, by two planes. Okay, and volume of the smaller cone is equal to V. Find the difference in volumes of the frustums. So this will be smaller cone. After cutting the topmost chotu wala cone, that is the smaller cone, the volume of this is equal to V. And then this will be a frustum. This is a frustum. And this is also a frustum. And question asking about difference in volume of the frustums. So this is frustum number 1. This is frustum number 2. Okay. So if we observe, there are total three cones. एक तो हमारा स्मॉलर कोन बन गया टॉप पे, ठीक है, और फिर एक ओरिजिनल कोन है हमारा, द लार्जर कोन. ओके, सो V इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन. ठीक है, दिस इज द स्मॉल कोन. And then there is this cone. Let us say this cone has volume equal to V2. And then we have the original cone. Let us say volume of the original cone that was equal to V3. So since all these three cones are similar cones, similar क्यों है? क्योंकि इनका height और radius will be in same proportion. Same proportion में होगा. कैसे देख सकते हैं कि अगर हम triangle observe करें, this is O, let us say this is A, this is B, this is C, this is D, E and F. So triangle OAB will be similar to triangle OCD and will be similar to triangle OEF. So if the smaller triangle OA, if this is equal to H1, OC is equal to H2, OA upon AB in this case will be equal to OC upon CD will be equal to OE upon EF. So if you say that OA is equal to H1, AB is equal to R1, so H1 upon R1, this will be equal to H2 upon R2. If OC is equal to H2, CD is equal to R2, and this will be equal to H3 upon R3. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे? बिकॉज हमारे सिमिलर सॉलिड्स हैं तीनों के तीनों. ठीक है, बात हम कर रहे हैं कोन्स की, क्योंकि कोन्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, फिर इसके बाद में कोन्स का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके हम अल्टीमेटली फ्रस्टम का वॉल्यूम का वैल्यू भी निकाल सकते हैं या रेशियो भी निकाल सकते हैं. ठीक है, सो हम तीनों कोन्स की बात करते हैं. कोन्स के वॉल्यूम हमारे आ गए V फॉर द स्मॉलेस्ट कोन, देन V2 फॉर द मीडियम साइज कोन एंड V3 फॉर द ओरिजिनल कोन. एंड वी टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ दीज वॉल्यूम्स. पहले हमें क्या पता है? हमें डेफिनेटली ये पता है यहाँ पे, क्योंकि हाइट का रेशियो हमें क्लियरली पता है कि H1 एंड H2 एंड H3 का रेशियो क्या है? दैट इज 1:2:3. ठीक है, H2 ये पूरा हाइट है हमारा OC, तो H1:H2:H3 यानी हाइट का रेशियो इज 1:2:3. एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू साइड होल क्यूब. सो हाइट का रेशियो है वही सेम, हमारा रेडियस का भी रेशियो होगा. एंड वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू साइड क्यूब, यानी कि वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो 1 क्यूब इज टू 2 क्यूब इज टू 3 क्यूब, यानी कि 1:8:27. And we've been given volume of the smaller cone is equal to V, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू इज इक्वल टू V. So if 1 unit is equal to V, तो 8 unit will be equal to 8V and 27 units will be equal to 27V. बट हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ द फ्रस्टम्स. तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा? नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस कोन
this cone, this is equal to 8V. This includes volume of the smaller cone as well as volume of the frustum. ठीक है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू. तो फ्रस्टम 1 का वॉल्यूम will be equal to 8V minus V, which is equal to 7V. And volume of the frustum 2 will be difference of V2 and V3. So that will be 27V minus 8V, which is equal to 19V. तो क्वेश्चन डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस विल बी इक्वल टू 12V, which is option B. अदरवाइज फ्रस्टम 1 का वॉल्यूम विल बी 7V एंड फ्रस्टम 2 का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 19V. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है बात? ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question number 2. Water is flowing into an inverted conical vessel at a constant rate. It takes 5 minutes to reach a height of 12 cm from the vertex. How much more time will it take for the water level to reach a height of 24 cm from the vertex? So there is an inverted conical vessel at a constant rate. Water is flowing in that particular vessel. It takes 5 minutes to reach a height of 12 cm from the vertex. So how much more time will it take for the water level to reach a height of 24 cm from the vertex? The vertex is at the bottom and we are filling that conical vessel. अब total height कितना है conical vessel का? We have no idea, but we know for sure that to reach height 12 centimeter, time taken is equal to 5 minutes. And we need to find out what time will it take to reach a height of 24 centimeter. ओके, जब वाटर फिलअप होगा तो वाटर तो ऑब्वियसली वॉल्यूम को ही फिलअप करेगा. तो पहले वाले केस में जो वॉल्यूम फिलअप हो रहा है हमारा, अगर हम एज्यूम कर लें कि दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू वी, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 मिनट्स टू फिल द वॉल्यूम इक्वल टू वी. तो सेकंड वाले केस में जो एडिशनल हमारा वॉल्यूम फिलअप होगा, क्योंकि पहला वाला तो ऑलरेडी फिलअप हो चुका, हाउ मच मोर टाइम क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल टाइम नहीं पूछ रहा है, मोर टाइम, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. सो एक्स्ट्रा टाइम विल बी फॉर दिस वॉल्यूम, लेट अस से दिस इज इक्वल टू वी1. ओके, अगेन दीज आर सिमिलर सॉलिड्स, यानी कि V एंड V प्लस V1 की बात करें तो हमारा स्मॉलर कोन, छोटू वाला कोन, दिस कोन, एंड देन द लार्जर कोन, this one, which has the volume V plus V1. These two are again similar cones. तो volumes will be proportional to side cube, यानी कि हाइट का क्यूब के बराबर हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे रेशियो में. ठीक है, सो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा? V एंड V प्लस V1. तो रेशियो ऑफ हाइट्स इन दीज केसेस, हाइट्स का रेशियो क्या है? 12:24 यानी 1:2. हाइट का रेशियो है 12:24 यानी 1:2. सो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा हमारा 1 क्यूब इज टू 2 क्यूब. सो 1:8 इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स. ओके, सो V अगर हमारा 1 यूनिट के बराबर है तो टाइम टेकन टू फिल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मिनट्स. सेकंड केस में हमें 8 यूनिट्स टोटल फिलअप करना था, जिसमें से 1 यूनिट ऑलरेडी फिलअप हो चुका है. तो रिमेनिंग कितना एक्स्ट्रा फिलअप करना है? 7 यूनिट्स और फिलअप करना है. तो टाइम टेकन विल बी 7 × 5 विच इज इक्वल टू 35 मिनट्स. टोटल टाइम 40 मिनट्स होगा, बट 5 मिनट्स का काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 35 मिनट्स विल बी एक्स्ट्रा नीडेड. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A conical flask has a total height of 12 centimeter and a total capacity of 864 milliliters. The flask is kept vertex down and a pipe fills the flask at a constant rate. तो vertex down हमने रखा है फ्लास्क को, यानी कि vertex will be at the bottom और जो flat base है वो टॉप पे रहेगा. And a pipe is filling the flask at the constant rate. How much more liquid should be added to increase the level of the liquid in the flask from 4 centimeter to 10 centimeter? नाउ पॉज द वीडियो. डेफिनेटली अब तक बात समझ में आ गई कैसे हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है. ऐसे किसी भी क्वेश्चन को तो सॉल्व करो इसको. कितना एक्स्ट्रा लिक्विड लगेगा टू फिल द फ्लास्क फ्रॉम 4 सेंटीमीटर लेवल टू 10 सेंटीमीटर लेवल. और टोटल हाइट हमारा 12 सेंटीमीटर है, जिसके लिए कि हमें टोटल कैपेसिटी गिवन है. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन. टोटल कैपेसिटी क्या है? दिस इज बेसिकली वॉल्यूम फॉर हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. So for total 12 centimeter, the volume is 864 ml. और क्वेश्चन कह रहा है कि how much more liquid should be added to increase the level of the liquid in the flask from 4 centimeter to 10 centimeter. So this is equal to 4 centimeter level and this is 10 centimeter level. So question is asking about the volume needed.
to fill this region. What will be volume needed? ओके, अगेन सिमिलर सॉलिड्स है तो हाइट का रेशियो देख लेते हैं और हाइट के क्यूब के बराबर रेशियो होगा हमारा फॉर द वॉल्यूम. ठीक है, सो रेशियो ऑफ हाइट्स क्या आ रहा है? 4, 10 एंड 12. 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. ठीक है, 4 फॉर दिस पार्ट, 10 फॉर दिस पार्ट एंड 12 फॉर द टोटल एरिया, टोटल लार्जर कोन. ठीक है, 4, 10 एंड 12 रेशियो इज 2:5:6. तो हाइट का रेशियो आ रहा है 2:5:6. तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 2 क्यूब is to 5 cube is to 6 cube. 2 cube is equal to 8, 5 cube is 125 and 6 cube is 216. So 8, 125 and 216. अब क्वेश्चन हमें बताया हुआ है कि जो टोटल 12 सेंटीमीटर पे हमारा टोटल वॉल्यूम इज 864 ml. So this 216 should be equivalent to total volume which is 864 ml. यानी कि 1 unit will be equal to 4 ml. 216 into 4 that is 864. 1 unit is equal to 4 ml. और क्वेश्चन पूछा डिफरेंस इन वॉल्यूम या लिक्विड नीडेड टू बी एडेड टू इंक्रीज द लेवल फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर वॉल्यूम आ रहा है हमारा 8 यूनिट्स और 10 सेंटीमीटर पे वॉल्यूम आ रहा है 125 यूनिट्स. डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 117 यूनिट्स. तो 117 into 4 will be equal to 468 ml. Option D will be the answer. That liquid needed will be equal to 468 ml. क्या क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two identical conical flasks of height of 12 cm and capacity of 864 ml are used. Flask A is kept vertex down with water filled up to a height of 8 cm and flask B is kept inverted and filled to a height of 4 cm. Which flask contains more water and by how much capacity? So there are two flasks this time. This time one flask is kept vertex down and second flask is kept inverted. ठीक है, so vertex down. ठीक है, सेकंड फ्लास्क को कह देते हैं वर्टेक्स अप. ओके, बिकॉज वर्टेक्स डाउन इज इन्वर्टेड इन फैक्ट. तो पहला फ्लास्क हमारा वर्टेक्स डाउन है एंड सेकंड फ्लास्क इज वर्टेक्स अप. एंड द वर्टेक्स डाउन फ्लास्क इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर. टोटल हाइट 12 है तो 8 सेंटीमीटर तक वी हैव फिल्ड दिस फ्लास्क. So this is the volume of water. And in the second case, second one is filled up to height of 4 centimeter. So this is the volume of the water. And question is asking the difference, कि which flask will be containing more water and by how much? Flask A and flask B. तो अगर ऑब्जर्व करें दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में हमारा वॉल्यूम है अप टू अ लेवल ऑफ 8 सेंटीमीटर. टोटल तो 12 था, यानी कि रिमेनिंग कितना बचा? 4 सेंटीमीटर इज रिमेनिंग. और सेकंड केस में बस हमने उल्टा करके रख दिया है, तो 4 सेंटीमीटर फिल्ड अप है, ऊपर का 8 सेंटीमीटर इज रिमेनिंग. सो अगर हम दोनों का वाटर साथ में मिला लें तो क्या टोटल 864 नहीं हो जाएगा? ठीक है, दोनों ही फ्लास्क का वाटर साथ में क्यूमुलेटिवली अल्टीमेटली शुड बी इक्वल टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द फ्लास्क. इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? बट डेफिनेटली दोनों में इक्वल तो नहीं है, डिफरेंस तो आएगा. ठीक है, सो किसी भी एक के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरे के लिए वैल्यू अपने आप आ जाएगा. सो 8 सेंटीमीटर तक फिल्ड अप है, टोटल 12 है, तो हमारा हाइट का रेशियो क्या आ जाएगा? पहले वाले फ्लास्क के लिए देखना आसान है चीज़ है, दूसरे के लिए कैलकुलेट करना थोड़ा इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. 8 सेंटीमीटर तक फिल्ड अप है, हाइट का रेशियो आ रहा है 8:12, दैट इज 2:3. तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा क्योंकि सॉलिड सिमिलर होंगे, सो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 2 क्यूब 3 क्यूब, दैट इज 8:27. एंड 27 यूनिट्स की वैल्यू है हमारी टोटल 864 ml. तो 27 से डिवाइड कर लो, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 27 3 81, तो 32 यूनिट्स. तो 8 into 32 दैट विल बी 216 ml. यानी कि 216 ml इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन फ्लास्क ए. तो फ्लास्क बी में कितना फिल्ड होगा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 864 minus 216, so that is equal to 648 ml. So in flask 1 it is 216 ml and flask 2 में this is 648 ml. ठीक है,
तो जो डिफरेंस है हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ठीक किया हमने, यहाँ पे 216 ही आएगा ना, गलत किया है। 8 × 30 to 216 कहाँ से कैलकुलेट किया है? 8 × 30 to 216 थोड़ी होगा, 216 तो 6 का क्यूब है। तो दिस इज 256 ml। 256 ml। तो 864 minus 256, that will be equal to 608 ml। तो डिफरेंस बिटवीन द टू वही हमें फाइंड आउट करना है। फ्लास्क बी इज कंटेनिंग मोर वाटर एंड डिफरेंस इज 608 minus 256, दैट इज इक्वल टू 354 352 ml। ऑप्शन C is the answer. Tank B, flask B contains 350 more water. Okay, clear है? ठीक है, ऐसा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A conical flask has a total height of, again same information है, flask is placed on its flat base and chemical is poured at a constant rate until it reaches a height of 4 cm from the base in 152 seconds. To find the time taken in filling that flask at the same constant rate from a height of 6 cm to a height of 8 cm. So what time will it take to fill the flask at the same constant rate from a height of 6 cm to height of 8 cm? जबकि हमें given information ये है कि until it reaches a height of 4 cm, time taken is 152 seconds. When flask is placed on the flat base. Total 12 centimeter के लिए volume is 864 ml. And flask is placed on the flat base. Chemical is poured until it reaches the height of 4 centimeter. And then we need to find out कि कब 6 centimeter से 8 centimeter पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सिक्स सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बट जब भी हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट कहाँ से चाहिए होगा? वर्टेक्स से चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ से ही कैलकुलेट हम कर पाएंगे वॉल्यूम का रेशो। ठीक है, सो हाइट फ्रॉम वर्टेक्स कितना है? इन केस ऑफ 8 सेंटीमीटर लेवल, height from vertex that is equal to 4, this value is 4, ठीक है, then this is equal to 6, then this is equal to 8, और पूरा हमारा 12 है ऑब्वियसली। ओके, और डिफरेंस हम वॉल्यूम अल्टीमेटली निकाल पाएंगे कैपेसिटीज का। तो हाइट का रेशियो क्या आ रहा है? 4:6:8:12, बट हाइट कैलकुलेट करेंगे हम वर्टेक्स से। 4:6:8:12, हाइट का रेशियो आ गया 2:3:4:6। तो वॉल्यूम का रेशियो विल बी 2 क्यूब:3 क्यूब:4 क्यूब:6 क्यूब, यानी कि 8:27:64:260। दीज आर द वैल्यूज, और 216 हमारा टोटल वॉल्यूम है विच इज इक्वल टू 864। सो यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ml। अब क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम टेकन इन फिलिंग द फ्लास्क फ्रॉम 6 to 8 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग अबाउट दिस वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा? ये वॉल्यूम हमें मिल रहा है फ्रॉम द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि बिटवीन दीज टू। So this is equal to 19 units. So 19 into 4, 76 ml will be the volume. और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि until it reaches a height of 4 centimeter, time taken is equal to 152 seconds. यानी time taken to fill up to the height of 4 centimeter is equal to 152 seconds. और ये वॉल्यूम हमारा कितना है? What is this volume? This is the volume between these two levels from 8 centimeter to 12 centimeter as far as we are calculating from vertex, टॉप से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और ये डिफरेंस हमारा इक्वल टू आ रहा है 216 - 64, दैट इज इक्वल टू 152 यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स में तो चीज़ें बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि 152 यूनिट्स को फिलअप करने में 152 सेकंड्स लग रहे हैं, तो 90 यूनिट्स को फिलअप करने में 90 सेकंड्स लगेंगे। एज सिंपल एज दैट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे वॉल्यूम एज सच निकालने की जरूरत है, यूनिट्स में ही काम हो जाएगा, क्योंकि 152 यूनिट्स को फिलअप कर रहे हैं पहले वाले केस में, वहाँ पे टाइम लग रहा है हमारा 152 सेकंड्स का। तो सेकंड केस में 90 यूनिट्स फिलअप करना है, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 19 सेकंड्स ओनली। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्या क्लियर है?
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, हम हमेशा जब भी वॉल्यूम का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वर्टेक्स से ही कैलकुलेट कर पाएंगे, बट हमने रखा है फ्लैट बेस पे, तो कैलकुलेशन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हाइट फ्रॉम द वर्टेक्स। बेस से जो हाइट है हमारा, वहां से वॉल्यूम निकालना इजिली तुरंत तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई हमें लेना पड़ेगा हाइट फ्रॉम द वर्टेक्स। ओके, क्लियर है? ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देयर आर वन और टू क्वेश्चंस जहाँ पे कि हम अगेन सिमिलर सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। एन आर्किटेक्ट builds a scale model of a geodesic dome. One second. Pause the video और solve करो। An architect builds a scale model of a geodesic dome. अब शेप कैसा होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज को समझ जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। शेप की वजह से टेंशन नहीं लेना है। एक जियोडेसिक डोम है जिसको स्केल मॉडल, इसका स्केल मॉडल प्रिपेयर करा है एक आर्किटेक्ट ने। द फ्लोर एरिया ऑफ द मॉडल इज 2 मीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इज 3 मीटर क्यूब। तो इफ द एक्चुअल डोम इज टू हैव अ फ्लोर एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल डोम। तो हमारा एक स्केल्ड मॉडल है ऑफ अ जियोडेसिक डोम, ठीक है। एंड फॉर दैट स्केल्ड मॉडल, इग्नोर द शेप, ठीक है। स्केल्ड मॉडल के लिए एरिया, फ्लोर एरिया is equal to 2 meter square and volume is equal to volume of the air inside is equal to 3 meter cube. So this is scale model, ठीक है। इसका जो एक्चुअल शेप होगा that will be something much larger, and since these two will be similar solids, शेप तो सेम ही होगा, बस डायमेंशंस का फर्क है, ठीक है। डायमेंशंस यहाँ पे स्मॉलर होंगी, वहां पे डिफरेंट होगा, ठीक है। डायमेंशंस का फर्क होगा, सिमिलर सॉलिड्स है हमारे, तो एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर and volume will be proportional to side cube. तो एरिया का हमें वैल्यू गिवन है कि इन द एक्चुअल डोम एरिया इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, सो दैट इज 100 टाइम्स है ऑफ द एरिया ऑफ द स्केल्ड मॉडल। सो वॉल्यूम क्या होगा हमारा 100 टाइम्स। अगर हमारा एरिया हो रहा है और एरिया इज प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर, तो साइड का रेशियो क्या होगा, साइड स्क्वायर का रेशियो हमारा 100x आ रहा है, ठीक है। कि अगर हम साइड मान लें साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, एरियाज का रेशियो बेसिकली A1 अपॉन A2 दैट इज इक्वल टू 100/1, यानी कि 100 का रेशियो आ रहा है। तो साइड 1 बाई साइड 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो साइड्स का रेशियो आ जाएगा हमारा इक्वल टू 10/1। सो वॉल्यूम का रेशियो शुड बी प्रोपोर्शनल टू साइड क्यूब, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब, 1000 हो जाएगा। 3000 मीटर क्यूब विल बी आवर वॉल्यूम फॉर द एक्चुअल डोम। ओके, एरिया अगर हमारा 100 टाइम्स है तो साइड हमारा 10 टाइम्स होगा एंड हेंस वॉल्यूम हमारा 1000 टाइम्स होगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two solid cones have their heights 4 times that of their radii. Their heights are in the ratio 3:5. The smaller cone is melted and recast into solid spheres, each having radius equal to 1/5 the larger cone's radius. How many spheres can be formed? बढ़िया क्वेश्चन है, पॉज करके एक बार टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व इट। यहाँ पे दो सेपरेट कोन्स है हमारे और उनका हाइट और रेडियाई के बारे में रिलेशनशिप गिवन है कि हाइट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियाई फॉर बोथ द कोन्स। दोनों डिफरेंट कोन्स है हमारे, बट दोनों कोन्स में क्या यहाँ पे अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हाइट और रेडियाई का जो रेशियो है दैट इज सेम, isn't it so? For both these cones, अगर पहले वाले कोन के लिए मानते हैं हाइट और रेडियाई h1 r1 है तो h1/r1, एंड सेकंड कोन के लिए h2 r2 है तो h2/r2, दैट इज इक्वल टू 4/1। एंड इफ रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस इज सेम फॉर बोथ दीज कोन्स, यानी कि बोथ दीज कोन्स आर सिमिलर सॉलिड्स एज वेल, दीज आर सिमिलर कोन्स। isn't it so? Their heights are in the ratio 3:5. हाइट का रेशियो है 3:5। अब जब हमारा हाइट और रेडियस का रेशियो सेम है तो रेडियस का रेशियो भी 3:5 ही होगा दोनों कोन्स के लिए, ठीक है। वैल्यूज डिफरेंट होगी बट द पॉइंट इज कि हाइट का रेशियो और रेडियस का रेशियो तो सेम ही होगा, 3:5 ही होगा, ठीक है। बिकॉज h1/h2 दैट इज इक्वल टू 3/5 एंड r1 h1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स r1, ठीक है। सो 4 टाइम्स r1, h2 is equal to 4 times r2 upon 4 times r2, that is equal to r1/r2. So this will also be equal to 3/5. These are similar cones obviously. So smaller cone is melted and recast into solid spheres, each having radius equal to 1/5 the larger cone's radius. How many spheres can be formed? अब एक तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पे
अननोन वैल्यूज को एज्यूम कर लें कि हम मान लेते हैं कि h1 और हमारा रेशियो गिवन है, ठीक है, हाइट मान लेते हैं 3h एंड 5h, ठीक है, रेडियस को मान लो क्योंकि रेडियस का 4 टाइम्स हाइट है, तो रेडियस भी हमारा 3:5 है, तो रेडियस मान लेते हैं अपना 3r एंड 5r, रेडियस को मान लेते हैं 3r एंड 5r। तो इन दैट केस हाइट क्या हो जाएगा हमारा, हाइट 4 टाइम्स हो जाएगा, तो हाइट हमारा हो जाएगा 12r एंड 20r। एंड देन वी आर melting the smaller cone. So this cone is being melted and recast into solid spheres, each having radius equal to 1/5 the larger cone's radius. देखिए स्फेयर का रेडियस क्या होगा, 1/5 द लार्जर कोन्स रेडियस, लार्जर कोन का रेडियस है 5r, तो स्फेयर का रेडियस विल बी इक्वल टू r। लेट अस से n सच स्फेयर्स आर फॉर्म्ड, तो n इनटू वॉल्यूम ऑफ, अल्टीमेटली वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कोन वन स्फेयर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, और n ऐसे स्फेयर फॉर्म हुए, दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, r इज इक्वल टू 3r, तो 3r स्क्वायर इंटू h विच इज 12r। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो n इंटू 4r क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 9 108 r क्यूब, सो n इक्वल टू 108 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 27, टोटल 27, ऑप्शन में 27 गिवन ही नहीं है। हाउ मेनी स्फेयर्स कैन बी फाउंड, ठीक है, 108/4, ट्वेंटी सेवन ही आंसर आएगा, ऑप्शन को इग्नोर कर दो, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, 27 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए रख देते हैं 27 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज गिवन नहीं थे क्वेश्चन में और उनकी जरूरत भी नहीं थी, तो स्ट्रेट अवे हम डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि हमें पता है, जैसे ही समझ में आ गया, जिस मोमेंट में हमें क्लियर हो गया कि दो कोन्स हैं, हाइट और रेडियाई का रेशियो सेम है दोनों ही कोन्स के लिए, फॉर बोथ द कोन्स हाइट एंड रेडियाई का रेशियो इज इक्वल, सो दैट इज implying clearly that these cones are similar cones है, और हाइट्स का रेशियो हमारा क्या है 3:5 है, रेडियस का रेशियो ऑल्सो भी 3:5, और रेडियस स्मॉलर क्वांटिटी है, तो रेडियस को पहले एज्यूम कर लेते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 3 एंड 5 यूनिट्स मान लेते हैं, रेडियस 3 एंड 5 हो गया, तो हाइट विल बी 4 टाइम्स यानी कि 12 एंड 20। नाउ स्मॉल कोन इज बीइंग मेल्टेड and radius of one sphere is 1/5 that of the radius of larger cone, यानी कि radius will be equal to 1 centimeter for the sphere, so volume of one sphere will be equal to 4/3 pi into 1 cube, and if n such spheres are made, so into n this will be total volume, and this will be equal to 1/3 pi into r square, यानी कि 3 into 3 into h which is equal to 12, so 3 and 3 gets cancelled out, और फिर हमारा पाई एंड पाई गेट्स कैंसल आउट, सो 4 से बचा है यहाँ पे 3, सो n विल इक्वल टू 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 27। ओके, एंड हेंस ऑप्शन ई 27 विल बी आवर आंसर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड right circular cone is divided into 4 parts of equal height by making 3 cuts parallel to its base. If the semi vertical angle of the original cone is 30 degrees, find the ratio of the total surface area of the original cone to the sum of the total surface area of the 4 parts. एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम 4 पार्ट्स में ऑफ इक्वल हाइट by making 3 cuts parallel to its base. If the semi vertical angle of the original cone is 30 degrees, find the ratio of the total surface area of the original cone to sum of the total surface area of the 4 parts. ठीक है, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया भी हमें अल्टीमेटली सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एडिशनली एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन क्या है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द ओरिजिनल कोन इज 30 डिग्रीज, so this angle here, this angle is 30 degrees. Okay, so if semi vertical angle is 30 degrees in a right angle triangle, if one angle is 30 degrees, so other angle will be 60, and साइड का रेशियो क्या होगा, 30 के सामने साइड विल इक्वल टू 1 यूनिट, 60 के सामने साइड विल इक्वल टू √3 यूनिट्स, एंड 90 के सामने साइड विल इक्वल टू 2 यूनिट्स, यानी कि साइड का रेशियो आ जाएगा 1:√3:2।
तो सेम कहानी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट, ऑल हाइट्स आर लेट अस से इक्वल टू 1 यूनिट, 1 1 1 1। बट अगर हम किसी एक ट्राइंगल को, सबसे छोटे वाले ट्राइंगल को उठाएं, तो इन दिस ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइड्स क्या होगा? सो इफ स्मॉलेस्ट साइड विल बी इक्वल टू, विल बी अपोजिट 30 डिग्रीज, यानी कि स्मॉलेस्ट साइड इफ रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट, इफ दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो हाइट हमारा इक्वल टू √3 आ जाएगा, और लैटरल हाइट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स और द स्मॉलेस्ट कोन। ठीक है, तो ऐसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं, सारी हाइट्स को √3 मान लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा कैलकुलेशन। बिकॉज रेडियस को 1 मान लेंगे, रेडियस 1 हो जाएगा, लैटरल हाइट 2 हो जाएगा, और हाइट हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, सो इफ रेडियस इज 1 फॉर द स्मॉलेस्ट कोन, देन रेडियस हियर विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स, रेडियस हियर विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स, एंड देन द लार्जेस्ट कोन का रेडियस विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स, एंड हेंस सिमिलरली हमारा जो लेटरल हाइट है वो दिस विल बी इक्वल टू 4, एंड पूरा कोन का दैट विल बी इक्वल टू 8। जब हम कोन को कट करेंगे तो कट करने से हमारे एडिशनल सर्फेसेस क्रिएट होंगे, जो फ्रस्टम्स होंगे उनका सेपरेटली एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, पूरे कोन का जो कर्व सर्फेस एरिया वो तो अनचेंज रहेगा। जब 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब भी कर्व सर्फेस एरिया तो एडिशनली ऐड नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा। एडिशनली फ्लैट सर्फेसेस हमारे क्रिएट होंगे कट करने से, है कि नहीं? तो जो फ्लैट सर्फेसेस क्रिएट होंगे उनका एरिया एडिशनली ऐड कर दोगे, तो टोटल सर्फेस एरिया तो 4 पार्ट्स, और टोटल सर्फेस एरिया ओरिजिनली, तो ओरिजिनली हमारा टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल lateral height प्लस आर, दिस इज अवर ओरिजिनल एरिया। ठीक है, एडिशनली एरिया क्या क्रिएट होगा? एडिशनली हमारे पास जब हम फर्स्ट कट मारेंगे तो 2 बेस एरियाज विल बी क्रिएटेड, तो 2 टाइम्स पाई, अगर हम इस रेडियस को R1 मान लें तो 2 पाई R1 स्क्वायर क्रिएट होगा। सिमिलरली सेकंड कट से इफ अगर इस रेडियस को R2 मान लें, 2 पाई R2 स्क्वायर क्रिएट होगा, एंड इफ दिस थर्ड रेडियस, थर्ड कट से इफ दिस रेडियस R3, तो 2 पाई R3 स्क्वायर क्रिएट होगा। ये एडिशन है। ठीक है, जो दिस वाज ओरिजिनल, तो ओरिजिनल और एडिशनल निकाल लेते हैं, का रेशियो निकाल लेते हैं और फिर एडिशनल को ऐड कर देंगे। और हमने वैल्यू जो एज्यूम कर लिया, या तो मान लोगे कि 1R 2R 3R 4R, अकॉर्डिंगली हमारा लेटरल हाइट हो जाएगा 2R, देन 4R 6R 8R एंड सो ऑन। ठीक है, बट अल्टीमेटली हमें क्रिएट क्या करना है? हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही चाहिए था, लेटरल हाइट सबकी निकालने की सेपरेटली जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द लार्जर कोन दैट इज इक्वल टू 4, 2 पाई इंटू 4 इंटू लेटरल हाइट विच इज इक्वल टू 8 प्लस रेडियस दैट इज इक्वल टू 4, और एडिशनल सर्फेसेस के लिए क्या होगा? 2 पाई टाइम्स R1 स्क्वायर, R1 इज इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर, प्लस R2 स्क्वायर, R2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, प्लस R3 स्क्वायर, R3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो दिस विल बी आवर रेशियो। 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इंटू 12 इज 48, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 14, 48 इज टू 14। सो आ गया हमारा रेशियो 24 इज टू 1 सेकेंड। ठीक है, हमने 24 इज टू 7 आ रहा है वैल्यू। फाइंड द रेशियो ऑफ द 2 पाई, क्यों लिखा है? पाई आर होगा ना यहाँ पे, क्यों ऐसा ब्लेंडर करा है? पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा ना। बहुत मिस्टेक हो रही है आज। सो ये वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 12 48, और वहाँ पे 2 कैंसिल किया तो 2 बच जाएगा, 24 इज टू 14 यानी 12 इज टू 7। ठीक है, अल्टीमेटली कोन का टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर बेस एरिया प्लस पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा, 2 पाई आर इंटू एल प्लस आर थोड़ी होगा। ठीक है, तो 12 इज टू 7 आ गया। 12 हमारा ओरिजिनल टोटल सर्फेस एरिया था, और फिर 7 ऐड हुआ, यानी कि फाइनल रेशियो हमारा आएगा 12 इज ओरिजिनल एंड 12 प्लस 7 19 विल बी फाइनल। तो 12 इज टू 19 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी। ओके, क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बात कर लेते हैं फॉर द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सो एक
फ्रस्टम हमने लिया ऑफ अ कोन, in that frustum the radius of top surface is equal to r1, radius of the bottom surface that is equal to r2. So in that case volume of frustum equal to pi h upon 3 into r1 square plus r2 square plus r1 r2. ठीक है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एनी फ्रस्टम इज इक्वल टू हाइट ऑफ दैट फ्रस्टम. हाइट क्या है? हाइट ये फ्रस्टम का हाइट है, कोन का हाइट नहीं है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम. इफ दैट इज इक्वल टू एच, तो पाई एच बाई 3 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. ठीक है, इन जनरल किसी भी फ्रस्टम का वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट ऑफ दैट फ्रस्टम डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द टॉप बेस प्लस एरिया ऑफ द बॉटम बेस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a1 a2. ठीक है, वैल्यूज पुटअप कर दो, पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा. और ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर एनी पिरामिड, एनी फ्रस्टम ऑफ एनी पिरामिड. ठीक है, फ्रस्टम ऑफ एनी पिरामिड. ठीक है, अब चाहे उसका फिर बेस तुम्हारा रेक्टेंगुलर हो या कोई भी शेप हो, फ्रस्टम ऑफ एनी पिरामिड इन जनरल. If let us say we are taking this is as a frustum, so area of top base is equal to a1, area of bottom base is equal to a2, or height is equal to h. In that case area will be equal to h by 3 into volume will be equal to h by 3 into a1 plus a2 plus root of a1 a2. ये तो बात होगी वॉल्यूम की. अब अगर बात करें हम लैटरल सरफेस एरिया की, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ एनी फ्रस्टम will be equal to 1 by 2 into perimeter of the top surface plus perimeter of the bottom surface multiplied by lateral height. 1 by 2 into p1 plus p2 into lateral height. So in case of a frustum made out of cone, curved surface area of that frustum is equal to pi into small r या pi into r1 plus r2 into lateral height. ठीक है, lateral height of the frustum. If this is the lateral height, so this is L, so pi into r1 plus r2 into L. ठीक है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का? तुम फ्रस्टम को ओपन करो, फ्रस्टम तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल फॉर्म था, तुमने कट किया, कट करके ओपन करो. ओपन करने से क्या होगा? जैसे तुम ओपन करोगे फ्रस्टम बेसिकली ओपन करने के बाद में शेप कुछ ऐसा दिखेगा. और जो टॉप लेयर है, दिस इज सर्कमफरेंस ऑफ द टॉप लेयर विच विल बी 2 पाई r1 एंड 2 पाई r2 और द बॉटम लेयर, क्योंकि बॉटम लेयर का पेरीमीटर है, एंड दिस हाइट हियर दिस विल बी इक्वल टू L. और ये क्या है? ट्रेपेजॉइड ही तो फॉर्म हो रहा है. तो एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजॉइड क्या होता है? That is 1 by 2 times sum of parallel heights, sum of parallel sides 2 pi r1 plus 2 pi r2 multiplied by distance between the parallel sides which is equal to L. तो बन जाता है pi into r1 plus r2 into L. That is why lateral surface area or curved surface area is equal to pi into r1 plus r2 into L. ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई होता है फॉर फ्रस्टम ऑफ एनी पिरामिड. वहाँ पे हमारा 1 by 2 टाइम्स p1 plus p2 into lateral height होगा, बिकॉज वहाँ पे भी तुम ओपन करोगे तो अल्टीमेटली एक ट्रेपेजॉइड ही फॉर्म होने वाला है. ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं. कंसीडर टू कंटेनर्स ऑफ द सेम हाइट. कंटेनर ए एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ कोन विद बेस एंड टॉप रेडियस इक्वल टू 2 and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड कंटेनर बी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर. विच कंटेनर विल बी होल्डिंग मोर वॉल्यूम? सो कंटेनर ए का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी. बी के लिए तो आसान है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट दोनों का सेम ही है, हाइट इज इक्वल टू एच. So that will be pi into 3 square into h. So 9 pi h. और कंटेनर बी, कंटेनर ए का वॉल्यूम क्या होगा? पाई h by 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4. सो 4 प्लस 8 12 प्लस 8 20, तो 20 इंटू पाई h by 3. ठीक है, तो कंटेनर ए का वॉल्यूम आ जाएगा 20 पाई h by 3 और कंटेनर बी का वॉल्यूम आ जाएगा 9 पाई h. ओके, गलतियां क्यों कर रहे हैं इतनी सारी? 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 20 प्लस 8 28, तो 28 पाई बाई 3 आएगा. 28 पाई बाई 3 एंड 9 पाई h.
which is 28 pi by 3 is basically 9 and 1 by 3 times IH. So greater than वॉल्यूम ऑफ सेकंड कंटेनर. ऑप्शन आएगा हमारा, कौन होल्ड कर रहा है ज़्यादा वॉल्यूम? ऑप्शन ए इज द आंसर. ठीक है, आज कैलकुलेशन में बड़ी गलतियाँ हुई हैं, बट आई बिलीव कि सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी. क्वेश्चन कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा. फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना. सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना है. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.